गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय स्वीट लिटिल रैबिट्स। मेरे बच्चों, जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम सफल हुए हैं या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम उतने सफल हुए हैं जितनी हमारे भीतर क्षमता थी। क्या हमको हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली सब कुछ मिला है? What we are getting here, what we got, that is according to our own ability, या हमें कम मिला है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जस्ट लाइक whatever we are getting from alternating current, is that the mean value or any other value? What is the real value of alternating current? जब मैं ये प्लग पिन लगाता हूँ तो मुझे एसी की वैल्यू कितनी मिलती है? 220 वोल्ट्स और डिफरेंट and that is known as effective value or RMS value or virtual value of alternating current. That is the beauty of AC, that AC 220 volt is more than 220 volt and that is around 311 volt, the peak value. वो कैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा. So today we are discussing second lecture of alternating current, that is AC, and we are discussing, क्या डिस्कस करेंगे हम? वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड एसी ईएमएफ। तो ये आज हम दोनों स्टडी करने वाले हैं। सो अगेन मे आई रिमाइंड यू, whatever value of current or EMF of AC we are getting, that is not mean or average value. अगर हम एक बल्ब खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट, या चार्जर पे लिखा है या टीवी पे लिखा है 220 वोल्ट. So that 220 volt doesn't mean average value, that means virtual value or effective value. तो याद रखिए, इफ यू आर गेटिंग ए न्यूमेरिकल ऑल्सो, उसमें जो भी वैल्यूज दी हुई हैं 220 वोल्ट 50 एम्पियर, इट मीन्स दे आर इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू, दे आर नॉट मीन और एवरेज वैल्यू. Clearly mention it. So today we are discussing virtual effective or RMS value of AC current. AC करंट की मैं ये सारी वैल्यूज दिखा दूंगा. 3 नाम है इसके, होते हैं ना, एक दादी जी ने नाम दे दिया, एक नाना जी ने दे दिया और एक मम्मी पापा ने दे दिया. 3 नाम होते हैं ना, घर का नाम पप्पू, ऐसे. सो दिस इज IV और आई इफेक्टिव और IRMS. किसी भी नाम से आप बुलाओ वही बच्चा आएगा आपके पास. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू. ना हाउ टू फाइंड द वैल्यू? This we are finding with the help of heating effect of current. In the heating effect of current, when current flows through a resistor or a conductor, then conductor becomes hot. और उसी heat से हम निकाल लेंगे अब current. So मैं definition बताता हूँ आपको. We are not knowing what is virtual value of current, so we are comparing this value of current with a steady current, जिसे हम जानते हैं. Steady current means a fixed current, constant. So वर्चुअल वैल्यू, एक ही चीज लिख रहा हूं मैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which would generate the same amount of heat, the same amount of heat in a given resistor
और रेजिस्टेंस ऑल्सो यू कैन राइट, क्योंकि ज्यादातर जगह तो रेजिस्टेंस ही मिलता है आपको। गिवन रजिस्टर फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल, हाफ नहीं अब, गिवन टाइम इंटरवल as is generated by AC in the same register for the same given time, और गिवन टाइम इंटरवल भी कह सकते हो आप कि गिवन टाइम इंटरवल क्या है। ओके, सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज जनरेटेड बाय या डन बाय भी कर सकते हो आप, एज इज डन बाय। ओके, तो मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, आप देखिए ध्यान से। वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat in a given resistor for a given time interval as is generated by AC in the same resistor for the same time. So if you flow AC and in the same time interval it generates some heat, and if that heat is equal to the heat generated by the steady current in the same resistor for the same time interval, then that value of steady current is equal to the virtual value or effective value, and it is denoted by you know very well. So हमें निकालते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह हो जाएगी थोड़ी मेरे पास। ओके, so we are going to consider now AC first of all. What is instantaneous value of AC? You know very well. With the value of instantaneous value we have to find. ये भी मिटा देता हूँ, यहाँ जगह हो जाएगी। Okay, so consider not consider, we know यार, हमको तो पता ही है। We know instantaneous value of AC current is, what is, I equal to I naught sin omega t. This we know, where I is instantaneous value, I naught is peak value, omega is angular frequency, and t is instant of time, not time interval. And you know very well this is not constant. But suppose this is constant for very small time interval dt, and when it flows through a resistor R, then it produces heat. Joule's heat, formula याद है? Joule's heat is I square R. हाँ, RT, I square RT. So let this current is constant for very small time interval dt, therefore heat produced in a resistor of resistance R is कितना होगा? So I equal to heat equal to I square RT होता है। So DH equal to I square R dt। कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने? I equal to H equal to I square RT। Okay, so for a very small time interval the current is flowing, so heat is also less, time is less. Okay, but we are flowing current
फॉर टाइम इंटरवल 0 to t, नॉट t/2, क्योंकि यहाँ 0 होने वाली नहीं, एवरेज वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। सो टोटल निकालता हूँ। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ हीट, total amount of heat for time interval 0 to t, यहाँ ये फायदा है, हाफ लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट डी एच 0 to h, आई स्क्वायर आर इज कांस्टेंट नहीं है अभी, है ना, इसकी वैल्यू तो रखी नहीं मैंने, आई की वैल्यू रखनी थी। यहाँ आई की वैल्यू क्या थी बच्चों, देखो, आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर। सो डी एच इक्वल टू नाउ आई नॉट स्क्वायर आर, कांस्टेंट है ये, और कुछ कांस्टेंट है नहीं है, देन इंटीग्रेशन 0 to t sin square omega t dt. Okay, integration of dh is h, upper limit minus lower limit I gया, then I naught square r, and now sin square omega t is here, and you all are the mathematics genius, so you know very well I square rt and sin square omega t is actually, sin square omega t is 1 minus cos 2 omega t upon 2 omega. Okay, so यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा इंटू डी टी। ओके, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 2 ओमेगा आउटसाइड, एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 ओमेगा, एंड सेपरेट दिस। सो फर्स्ट हो गया 0 to t 1 into dt माइनस सेकेंड ये 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। करेक्ट बच्चों? अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने के लिए जगह नहीं दिख रही है, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा, बिकॉज दिस सेम वी आर गोइंग टू यूज फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो यहाँ जगह है अपने पास, देखो यहाँ करते हैं। ठीक बच्चों? So here, up to here we are clear now. So h equal to, पहले यहाँ करता हूँ, यहाँ भी जगह है, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 ओमेगा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 ओमेगा इंटू, इसका इंटीग्रेशन किया 1 इंटू डी टी। सो 1 इंटू डी टी क्या होता है प्यारे बच्चों? डी टी, दिस इज टी, एंड लिमिट इज 0 to t माइनस, इसका पूरे का इंटीग्रेशन 0 आता है, पूरे का कैसे आता है चलो कर देते हैं, ये तो आप कहोगे ये सब कहाँ से ले आए। सो माइनस इंटीग्रेट cos 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, एंड लिमिट इज 0 to t। करेक्ट? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, you know very well, that is sin x अपॉन sin ax है तो sin ax अपॉन a, and now we are applying limit, so h equal to I naught square r upon 2 omega, and here t minus, यहाँ सब ऐसे कैसे छोड़ रहा हूँ अभी, यहाँ है मेरे पास 1 अपॉन 2 ओमेगा, एंड देन आई एम अप्लाइंग लिमिट अपर माइनस लोअर, साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0।
अपर लिमिट माइनस लोअर। अपर मतलब टी की जगह मैंने क्या लिखा, टी की जगह क्या लिखा बच्चों, टी की जगह कैपिटल टी एंड देन फॉर टी small, that is 0. Okay, so here h equal to I naught square r upon 2 omega, ये t तो वैसे का वैसे ही है, देखो आप, minus 1 upon 2 omega as it is, and this is sine 2, and omega you know very well, omega is 2 pi by t, 2 pi by t, and this is sine 0. अब देखो t से t चला गया, so h equal to I naught square r upon 2 omega into t minus 1 upon 2 omega, and this is sine 4 pi. क्या वैल्यू है, हाँ सच बोला, 0, एंड साइन 0 इज 0, तो देखिए ये पूरा 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, मैंने कहा था ना ये पूरा 0 आता है. सो व्हाट वी आर गेटिंग, h equal to I naught square r t upon 2 omega, ये मिला है मुझे. This is equation number 1. So this is the value of heat generated by steady current, and the same heat should be generated by the AC. So now we going for the definition. So from definition means heat I square RT होता है. So IV square RT, क्योंकि T टाइम के लिए किया था. So we have two values of heat and then we have to now, yes, equate them. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों की वैल्यू रखूंगा. क्या है ये, I v square RT, and that is I naught square RT upon 2 omega, T से T, R से R, correct. So IV square equal to I naught square upon 2 ओमेगा. अब यहाँ कुछ गड़बड़ आ रही है, क्या गड़बड़ हुई भाई, देखिए जरा, यहाँ 2 ओमेगा था, ठीक है, एंड दिस इज I naught square R dt. So what is the problem here, कहाँ पर हमारी गलती हुई है, h की वैल्यू आई थी हमारी I naught square R dt अपॉन 2, हाँ क्या वैल्यू, प्रॉब्लम क्या हुई है, ओके ओके, मिस्टेक इज हियर, ये मिस्टेक हमने दूर करनी थी. दिस इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 है ये. व्हाट इज दिस, 2, मैंने इसको ओमेगा लिख दिया, ये आया मेरा. ओके, सो हियर ये ओमेगा नहीं आया. So this is I naught square upon 2. What is this? This is I naught square upon 2, and so IV equal to I naught upon root 2. I naught upon root 2, and if you write the value of root 2 here, 1.414, then you will get 0.707 I naught, that is 70.7% of I naught. कितना आया देखिए आप, 70.7%. What does it mean? I naught is peak value or amplitude, it is maximum value, और मैक्सिमम वैल्यू का 70% वर्चुअल वैल्यू होती है. कितना, 70% वर्चुअल वैल्यू होती है, एंड एवरेज वैल्यू वॉज, आपको याद है 0.637, 63.7% थी, यानी एवरेज वैल्यू इज लेस एंड वर्चुअल वैल्यू इज मोर. तो मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ,
कि क्या आया आपके पास आया आई वी इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू या 0.707 आई नॉट और 70.7% ऑफ आई नॉट। ओके, आया क्या? अगर नहीं भी आया तो अब आ जाएगा, क्योंकि मैं सेम आपको अब डिस्कस करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो और आपने देखा कभी कभी काम करते करते गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों को हमें ठीक करना चाहिए। सो अगेन आई एम डिस्कसिंग वर्चुअल इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं? एसी ईएमएफ की। एसी ईएमएफ को हमको ई लिखना पड़ेगा, ई एंड ई, करेक्ट। डेफिनेशन फिर से बता रहा हूं, द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट वैल्यू ऑफ steady EMF which would generate the same amount of heat in a given resistor for a given time interval as it done by or generated by the alternating current in the same resistor for the same given time interval, and it is denoted by EV, E effective और ERMS। तो हमें निकालना है। So we know that instantaneous value of AC EMF, अब हम EMF लेके चलेंगे। AC EMF is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कांस्टेंट नहीं होता है ना। सो लेट दिस EMF इज कांस्टेंट, तो मेरे साथ साथ चलना तो आपको पहले वाला भी आ जाएगा। लेट दिस EMF is constant for very small time interval dt, therefore heat produced in resistor of resistance R is, so यहाँ I का फार्मूला नहीं लगेगा, हाई हीट का एक फार्मूला और होता है, आपको याद होगा, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू सी होता है इफ यू आर टेकिंग पोटेंशियल। तो यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका, here now we are using which formula, H is equal to V square upon R into T. So dH is equal to E square upon R and time interval is dt. Now putting the value of E, this one, so E naught square sin square omega t dt upon R. So this much of heat is produced in the resistor in time interval dt, and we have to find total value। हमें तो टोटल चाहिए, कितनी चाहिए? टोटल वैल्यू। तो टोटल निकाल लेते हैं हम। टोटल वैल्यू कितनी आएगी आपकी? आप देखिए, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? इंटीग्रेट। So look here, therefore total amount of heat for time interval 0 to t is 0 to h dt, and here which is outside E naught square upon R, ये बाहर आएगा E naught square upon R, and inside sin square omega t dt, and sin square omega t is 1 minus cos 2 omega t upon 2 ओमेगा नहीं, जो मैंने पहले गलती की थी। तो जब हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो हमें अपनी गलती समझ में आ जाती है कि हमने जल्दी जल्दी में कहाँ गलती की। बच्चे भी मुझे बोलते हैं सर जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया, पर उसको सुधारना जरूरी है, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब आपको पता है कि हियर ओनली देयर इज ए चेंज, ई नॉट स्क्वायर अपॉन, ये 2 बाहर आ गया, 2r ई नॉट स्क्वायर upon 2r, so this minus this, तो ये पूरा कहाँ चलेंगे हम? यहाँ से यहाँ आए थे। सो दिस इज ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, और सब चलता जा रहा है, वैसे का वैसे ही चलेगा। ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, देखो t माइनस, the same thing is going on here, there is no change, E naught square upon 2r
E naught square upon 2r, and this is 0 now, and t is only remaining here. So we will get E naught square t upon 2r, and when we get this, then we are going for the definition. तो मैं थोड़ा इधर चला गया, आप कहेंगे कि सर तो गायब ही हो गए लो फिर आ गया, तो आपको फिर से समझा देता हूँ, ये देखिए. So from here h equal to E naught square upon 2r, and this is now the value t minus sin omega t upon 2 है ना, ओमेगा नहीं, ये गलती हो रही थी मेरे से, इसको ठीक कर लेते. This is not 2 omega. Then E naught square upon 2r integration of t यानी limit t minus 0, then 1 upon 2 is outside, and sin 2 omega t का वैल्यू यहाँ पुट किया हमने, t का अपर लिमिट माइनस लोअर, sin 2 omega into t minus sin 2 omega into 0. So E naught square upon 2r t minus 1 upon 2, and 2 omega means 2 pi by t, and t ka t, and this is 0, and t, this is sin 4 pi, and sin 4 pi is 0, and sin 0 is 0. So this whole quantity is 0, and we will get only t. So h equal to E naught square t upon 2r. This is the value of heat. And when we are getting the value of heat from the steady current, then we go for the definition. Definition is h is equal to I naught square नहीं आएगा, क्या आएगा, EV square upon R into T. Formula वही है, V square upon R into T. Now we equate these two values. So when we equate these two values, that is from equation 1 and 2, तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं. ये देखिए आप, here I am writing all the values. आंसर सेम आने वाला है, आप देखिए बिल्कुल सेम आएगा, आपको भी लगेगा अरे वाह आंसर तो सेम आ गया. सो दिस इज ई वी स्क्वायर टी अपॉन आर, एंड दैट इज ई नॉट स्क्वायर टी बाय 2r. देखो आर 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 टी टी टी, so EV is equal to E naught upon under root 2, that is 0.707 E naught or 70.7% of E naught. 70.7 सेम आया देखिए. So whatever be the virtual value of current, the same will be the virtual value of EMF. ओके, अच्छा लगा आपको. अब इसकी एक खास चीज बताता हूँ आपको, और एक क्वेश्चन बताता हूँ छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, कि व्हाट इज द वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी. इतना हमने पढ़ तो लिया, पर एक्चुअली व्हाट इज द वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, वो मैं निकाल के बताता हूँ. देखिए क्वेश्चन आता है आपके पास, which is dangerous 220 volt of AC और DC. आपसे पूछा which is more dangerous 220 volt AC और DC. आप कहोगे हैं दोनों ही तो सेम है. सेम नहीं है, किसकी पीक वैल्यू ज्यादा है वो हमको निकालना है, बिकॉज दिस इज वर्चुअल वैल्यू. वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज वर्चुअल वैल्यू. तो पहले मैं डीसी की बात करता हूँ. किसकी बात करता हूँ, डीसी. सो डीसी फ्रीक्वेंसी इज 0, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, सो इट्स वर्चुअल, इफेक्टिव और आरएमएस और वॉट एवर वैल्यू इट इज सेम. सो पीक वैल्यू ऑफ DC is 220 volt. ये रहेगी. Now I am going for AC. So whatever given, this is virtual value. This is virtual value. And now I am going to find peak value. अभी हमने फार्मूला निकाला था कि as EV equal to E naught by root 2. E naught means
peak value, maximum value. So E naught equal to under root 2 EV, and under root 2 EV means 220, and under root 2 is 1.414. So we are getting around 311 volts. अरे बाप रे, AC 311 वोल्ट मिल रहा है and DC is 220. So which is more dangerous? AC is more dangerous. Therefore AC is more dangerous to DC because its peak value is more. अच्छा लगा आपको? आया समझ में? एक और छोटा सा क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड वर्चुअल वैल्यू. इफ समबडी इज आस्किंग की वर्चुअल वैल्यू की निकाल के बताओ. सो लेट्स वी हैव एन इक्वेशन I इक्वल टू 6 sin 314t. क्या है ये? अरे दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. जैसे ही इक्वेशन मिले ना, इसके नीचे फार्मूला लिख लो. फार्मूला मीन्स सेम इक्वेशन, I नॉट साइन ओमेगा टी. तो देखो सब पता लग गया. ये देखो, ये देखो, I नॉट 6 and omega is 314. And suppose they are asking virtual value. So virtual value is I naught upon root 2. That is 6 upon root 2. So इसको रैशनलाइजेशन कर देता हूँ. 6 रूट 2 अपॉन 2 और ये करीब आएगा 4 पॉइंट समथिंग आता. मैं देख लेता हूँ आंसर, अभी काट नहीं रहा. 4.24 करीब आएगा. 4.24 एम्पियर. सो दिस इज दी वर्चुअल वैल्यू. आप कहोगे सर वर्चुअल वैल्यू तो कम आई. हाँ, अरे वर्चुअल वैल्यू ओनली 70% होती है ना, इसका 70% पीक वैल्यू का. तो देखो कम आया. सो रिमेंबर माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, whatever value in the numerical is given for AC EMF or AC current, that is always virtual value. ओके तो अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा है, प्लीज शेयर इट टू दी अदर्स, कमेंट ऑल्सो, और करके देखो. करोगे तो गलती समझ में आएगी. जैसे मैंने किया तो एक गलती हो गई, ओमेगा लिख दिया गलती से फिर आखिरी में जाके ठीक करना पड़ता है. तो कोई बात नहीं, हमें सही चीज पेश करनी है. और ये डेरिवेशन ज्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर हमें करना चाहिए. सीबीएसई कुछ भी पूछ सकता है, एवरीथिंग. एंड आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्लो ऑफ. आपको एसी मिल गई, अब एसी को आप क्या करोगे? मम्मी अगर कोई डिश बनाती है तो मम्मी क्या करती है? सबको खिलाती है और पूछती है कैसी लगी, कैसी लगी, कैसी लगी. तो सबको मम्मी देगी, रजिस्टर को देगी एसी, कैपेसिटर को, इंडक्टर. सो वी आर गोइंग टू फ्लो एसी नाउ इन रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. और फिर देखेंगे कि ईएमएफ और करंट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. ओके अच्छा खाओ, अच्छा पियो, माता पिता से प्यार लो, प्यार दो, दादा दादी के साथ रहो, सब दोस्तों से बात करो, खुश रहो. मोबाइल में घुस मत जाओ, उसको यूज करो. ऐसा मत करो कि आंखें खराब हो जाएं और बाद में परेशान हो जाओ कि अरे हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली. रात भर मत जागो, बेवकूफ जागते हैं रात को, मत जागो. कहते हैं निशाचर, निशाचर वो लोग रात को जागते हैं. तो जागो रात को पढ़ने के लिए, फालतू घूमने और गाने सुनने के लिए नहीं. ओके, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों.